स्वागत है आपका सिटी चैनल में। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं सरिता रावत। शिमला स्थित लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल में शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन वार्षिक संगीत समारोह की धूम रही, जिसमें 6वीं से 11वीं तक के सभी बच्चों ने भाग लिया और इस दौरान संगीत पर आधारित नाटक एनी पेश किया गया, जो सबके आकर्षण का केंद्र रहा। इस नाटक में सभी छात्राओं ने अभिनय की बेहतरीन मिसाल पेश की। प्रदेश के सबसे अग्रणी स्कूलों में शुमार लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल शिक्षा और खेलकूद के अलावा अन्य गतिविधियां भी आयोजित करता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा ही कार्यक्रम होता है स्कूल का वार्षिक संगीत समारोह, जिसका स्कूल की छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन तक आयोजित किए गए इस संगीत समारोह में अनाथ बच्ची पर आधारित म्यूजिकल प्ले एनी प्रस्तुत किया गया, जिसे स्कूल के 2 ग्रुप में बांटा गया था। एक ग्रुप को सरलाकांत ने और एक को रितु शर्मा ने निर्देशित किया था, जिसका संगीत मनोज और सूजन भागड़ा ने तैयार किया था। इस समारोह में 6ठी से 11वीं तक की सभी छात्राओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। You mean your aunt's parents? Yes. I don't believe that. Where did you say you come from? You see, a farm out there in New Jersey. In the yard out back, we have lots of geese, chickens, ducks, and of course roosters. Rooster! You swine! Sir, I think every liar, thief, and cracker showed up on a doorstep today. So many sob stories, but none mentioned giving Annie the locket. Did they show up yet? I'm sorry, Annie. Annie, it appears that people claimed they were your parents, but were fakes. I'm sure my parents will turn up soon. Maybe they missed their train or got lost or something. स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर स्टेफनी ने स्कूली छात्राओं और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हालांकि स्कूली छात्राएं मंझी हुई कलाकारा नहीं होती, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से जो खूबसूरत प्रस्तुति उन्होंने दी है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने नाटक के संगीत निदेशक मनोज की मेहनत की भी दाद दी। Actually, they were not such big hurdles. These are not actors and actresses, so these are children. So they need a lot of training. So it took us time to get them ready. But I must say that the children were so good that it's easy, I think, to mold the children and to get them, to train them as adults, because they listen to us. But in the beginning, it was a little difficult because they are not used to this sort of things. So that was a little bit of a difficulty. Otherwise, not a huge difficulty. That was your feeling. What was the last feeling you had when the whole function came out? I have no words to say. I need to explain what my feelings, because I was overjoyed and so happy that the children put in their best, and I'm so proud of them. And it came out so beautifully that as I said, I have no words to express my joy and my gratitude to the children for making me feel so proud and making our school feel so proud. स्कूल की उप प्रधानाचार्य सिस्टर मर्सिया ने भी बच्चों और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। I would like to address the students and the parents, the staff members. I do hope that this musical has brought some message to all, to help those in need, like our little Annie today was helped. So apart from just performing it today, it brought out the best, at least the principal and the teachers, and Manoj sir has brought out the best in every child. And I'm sure this will give them great confidence to move forward. नाटक की ग्रुप ए की निर्देशिका सरलाकांत ने कहा कि नए बच्चों को निर्देशन देने में सबसे पहले उन्हें सहज बनाकर मंच पर खुली छूट दी गई, जिससे उनके भीतर की प्रतिभा निकलकर सामने आ पाई। उन्होंने कहा कि नाटक में बचपन और यौवन काल के अंतर को दर्शाया गया है, जिसे बच्चों ने बखूबी निभाया। It's very important to build up a rapport with the children, to make them feel comfortable. That's my way of dealing.
And when they're comfortable with me, then they are ready to take on criticism also, and they follow instructions, because when you give them a little freedom to do things as they also want to do, so it's a give and take process basically. So if the children are good and they just need a little guidance, and then they feel at home and feel comfortable, then they deliver the goods really well. ग्रुप बी की निर्देशिका रितु शर्मा ने बताया कि हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी होती है जिसे पहचानने की जरूरत होती है। उन्होंने इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों सहित पूरी टीम को इसका श्रेय दिया। Every child has some kind of creativity. It depends only on the teacher to use it in the right way. So definitely it is the children and that little trust and freedom and rapport that she's spoken about, which actually provides them with wings with which they fly on the stage. No sir, it is all teamwork. Without the cooperation of the parents, children will not be able to perform. And without creativity in the children, we will not be able to handle them. So it is a joint effort. I mean, that credit cannot be just taken by us as teachers. संगीत निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि पाश्चात्य संगीत पर आधारित इस नाटक को तैयार करना काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसमें सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया। इंग्लिश प्ले था और मुझे इस प्ले से सीखने को बहुत ज़्यादा मिला, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सिस्टर। और क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नज़रिए से थोड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो ये एक्चुअल प्ले है ये टिपिकल म्यूज़िक, टिपिकल वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक पे कॉम्पोजिशंस को बनाया गया है, और उन कॉम्पोजिशंस को एज इट इज़ ऑप्ट करना एक चैलेंज था मेरे लिए भी, और बच्चों के लिए तो चैलेंज होना ही होना था, क्योंकि 12 सुरों के गाने, 12 नोट्स के सॉन्ग्स हैं ये सारे के सारे, इनमें कोई कॉम्बिनेशंस नहीं थे। तो और ये सारा का सारा क्रेडिट मैं सिस्टर को देना चाहता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्ले का म्यूज़िक कर सकूँ। और वहीं संगीत निर्देशिका सूजन भागड़ा ने भी शास्त्रीय संगीतज्ञ होने के बावजूद पाश्चात्य संगीत में इतनी खूबसूरती से निर्देशन करने पर मनोज की तारीफ की। I mean, in that context, for him, because he's a classical person, and therefore it was a little difficult for him, but he came out very well with that, and he took it on as a challenge, as he did last year too. So he took it on as a challenge and he brought it out very well. So he was able to get into the music, and a lot of learning, a lot of teaching, and the children moving in. We had to actually get them to sing properly, to get their accents right, to get them into it. And once they were all into it, then it was easy. 3 दिन तक चले इस संगीत समारोह में स्कूली छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों को भी भाव विभोर और विश्वास से ओतप्रोत कर दिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस अपने सदस्यों व पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नीतियों से अवगत करवाएगी। ये जानकारी सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित सोशल मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवाओं में भागीदारी बढ़ाने के मकसद से सोशल मीडिया की अहम भूमिका रहेगी। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोशल मीडिया पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने इस कार्यशाला में आए अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव एवं हिमाचल प्रभारी अफजल अहमद, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया के प्रशिक्षक ऋत्विज जोशी तथा पुष्कर भास्कर का स्वागत किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया द्वारा अधिकाधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के आयोजन से युवाओं को सोशल मीडिया के प्रति बेहतर ज्ञान हासिल होगा और संगठन की गतिविधियों एवं कार्यक्रम के प्रचार को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने में बल मिलेगा। आने वाले विधानसभा के चुनाव है तथा ग्राम पंचायत के पंचायती राज के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, उनके लिए हमने आज से ही अपनी कमर कसने का निर्णय लिया है। युवा कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और मीडिया जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम युवाओं तक प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं, उनकी विचारधारा को समझ सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और वहीं जो पार्टी की गतिविधियां हैं, प्रदेश सरकार की जो विकास के कार्य
प्रदेश सरकार करवा रही है उसके बारे में हमने युवाओं को अवगत कराना ये दायित्व युवा कांग्रेस का है और निश्चित तौर से उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मुंबई व बेंगलुरु में इन्वेस्टर मीट से प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा और इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। हिमाचल से भाजपा के राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने का स्वागत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये हिमाचल के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जगत प्रकाश नड्डा संगठन से जुड़े स्वच्छ छवि के नेता हैं और उनके मंत्री बनने से हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा और प्रदेश भाजपा में राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। आज एक क्लियर मैसेज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मोदी जी की ओर से भेजा गया है कि ऐसे नेता जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो एक स्वच्छ छवि वाले नेता है, वो उनको आगे लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर आए दिन हो रही राजनीतिक बयानबाजी व खींचतान से त्रस्त होकर कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की विडंबना है कि अभी तक प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है, जबकि देश के अन्य राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना शैक्षणिक आधार पर तय की जानी चाहिए। शांता कुमार ने कहा कि ये प्रदेश की विडंबना है कि अभी तक प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में हो रही राजनीति के चलते इसकी स्थापना न होने से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। शांता कुमार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को टुकड़ों में स्थापित किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के लिए मिला है और जहां पर भी इसकी स्थापना हो वहां पूर्ण रूप से स्थापना की जाए ताकि छात्रों को एक ही छत के नीचे बेहतरीन शैक्षणिक माहौल मिल सके। मेरा उस बारे में कहना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना से राजनीति को दूर रहना चाहिए। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि नेताओं ने समझा हम हर मामले में एक्सपर्ट है। तो मैंने कहा एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद तय करे यूनिवर्सिटी कहाँ होनी चाहिए। ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है, यूनिवर्सिटी हिमाचल में होगी और सारा हिमाचल मेरा है। बिल्कुल सारा हिमाचल मेरा है। कहीं यूनिवर्सिटी होगी तो मुझे लगेगा मेरे हिमाचल में यूनिवर्सिटी आई है। तो राजनीतिक लोगों को अलग होकर केवल यूनिवर्सिटी शैक्षिक आधार पर कहाँ होनी चाहिए इसका निर्णय, और मैंने हिमाचल सरकार को भी कहा कि इसका निर्णय देर से करने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हमको हुआ है। बाकी जगह यूनिवर्सिटी बन गई, पूरी तरह से चल रही। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ है, वहाँ है, बिखरी पड़ी है। अब इस ढंग से विश्वविद्यालय नहीं चलते। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। भारत की पूर्व ग्रीष्मकालीन राजधानी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भाषा कला एवं संस्कृति विभाग और ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान से शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में शिमला सेलिब्रेट्स नामक 10 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का सोमवार को समापन हो गया। प्रदर्शनी के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में भाषा कला एवं संस्कृति और ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय कला प्रदर्शनी का समापन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने किया। 10 दिनों तक चली इस कला प्रदर्शनी में देश विदेश के विभिन्न चित्रकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में चंबा के खूबसूरत रुमाल बनाकर अद्भुत कला का प्रदर्शन भी किया गया। प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई चित्रकलाओं में छिपी भावनाओं का वो सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कलाकारों के लिए ये प्रदर्शनी प्रेरणादायक है। हिमाचल एक देवभूमि है, यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती की रासलीला और सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर कला जो है प्रत्येक व्यक्ति में है, जो नाटी है वो रग रग में बसी है, सबके खून में बसी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कला है
और उसको मिनिएचर पेंटिंग के माध्यम से जो दिखाया है यहाँ पर हमारे कलाकारों ने, वो एक बहुत ही महत्व। भाषा कला एवं संस्कृति के निदेशक अरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चित्रकला प्रदर्शनी का उद्देश्य ललित कला के प्रति लोगों को जागरूक बनाना था। उन्होंने कहा कि इस कला प्रदर्शनी से ललित कला के विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी और उन्हें लाभ पहुंचेगा। ये एक शिमला सेलिब्रेट्स के उपलक्ष्य में एक ललित कला अकादमी की ओर से ललित कला की ओर जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। राजधानी शिमला स्थित रोटरी टाउन हॉल में सोमवार को चौपाल क्षेत्र के छात्र संगठनों, जनप्रतिनिधियों व चौपाल के लोगों ने मिलकर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का शुभारंभ चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने स्वयं रक्तदान कर किया। चौपाल क्षेत्र के सभी छात्र संगठनों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व चौपाल के लोगों द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिमला के माल रोड स्थित रोटरी टाउन हॉल पर आयोजित इस शिविर का शुभारंभ चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने रक्तदान कर किया। इस शिविर में चौपाल के छात्रों व लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि शिमला के अस्पतालों में चौपाल की जनता को रक्त की कमी से ना जूझना पड़े, इसलिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, ये जो हमारे चौपाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग यहाँ तीनों हॉस्पिटल में आते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उस उद्देश्य से हमने लगाया है। इसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन हैं चौपाल की, उनके सहयोग से, जितने हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड है उनके सहयोग से और समस्त चौपाल की जनता के सहयोग से ये ब्लड कैंप लगाया हुआ है। और तीनों हॉस्पिटल के लीडिंग, रिपन और स्नोडन के तीनों हॉस्पिटलों के यहाँ डॉक्टर्स आए हुए हैं और तीनों हॉस्पिटलों को ये हम ब्लड देंगे। इसका मेन उद्देश्य ये है, जो हमारे चौपाल कॉन्स्टिट्यूंसी के पेशेंट तीनों हॉस्पिटल में आते हैं, उनको ब्लडों की बहुत कई बार ज़रूरत पड़ती है, ब्लड अवेलेबल नहीं होता। उस उद्देश्य से लगाया कि ये जो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं, चौपाल का कोई भी पेशेंट बगैर ब्लड से ना रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ हरदेव कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल प्रदेश को स्थान देने और जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए जिला सोलन के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी का धन्यवाद किया और साथ ही इस उपलब्धि के लिए जेपी नड्डा को बधाई दी। सोलन में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में एकत्रित होकर नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने पर खुशी जाहिर की। जिला सोलन में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोलन में एकत्रित होकर जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने पर बधाई दी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सोलन भाजपा मंडलाध्यक्ष लोकेश्वर शर्मा ने जेपी नड्डा को बधाई देते हुए कहा कि वो बहुत ही कर्मठ नेता है और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अब उनके माध्यम से हिमाचल के विकास को और गति मिलेगी। कल जो केंद्र में सरकार का विस्तार हुआ है, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी एक अच्छा स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश से माननीय जेपी नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्रालय का विभाग देकर हिमाचल की शान को आगे बढ़ाया है और ये जो नड्डा जी को प्रतिनिधित्व मिला है, नड्डा जी बचपन से लेकर सक्रिय राजनीति में रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी स्वास्थ्य विभाग उनके पास रहा है और हिमाचल की राजनीति में ही उनके पास वन विभाग भी रहा है। एवीपी से भी वो जुड़े रहे हैं। बहुत ही ईमानदार कर्मठ नेता है और निश्चित तौर पे हिमाचल का विकास इनके माध्यम से आगे बढ़ेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की डुम्मी पंचायत के गांव पुआबो में एक दलित परिवार ने स्थानीय विधायक पर दबंगई कर मकान को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। वहीं विधायक अनिरुद्ध सिंह और पंचायत प्रधान मनोहर सिंह कश्यप ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा दलित परिवार पर पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप जड़े हैं। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पुआबो गांव के इस दलित परिवार ने स्थानीय विधायक अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ उनके घर के ऊपर बने मंदिर के लिए जाने वाले सीढ़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत सदर थाने में दर्ज करवाई है। लेकिन परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर विधायक के दबाव में कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाए। प्रभावित परिवार के सदस्य विपुल कश्यप और शकुंतला देवी ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है।
कल वो आए, जबकि हमने स्टेयर केस के लिए कोर्ट में हमने केस किया हुआ है। वो आए, उन्होंने कल ज़बरदस्ती यहाँ आके जेसीबी लगाई। जेसीबी लगा के उन्होंने क्या किया, हम घर में थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे माताजी थे, पिताजी थे यहाँ पे, और हमारे बच्चे वगैरह और लोग थे इधर। आए, उन्होंने स्टेयर केस को तोड़ा और तोड़ के सीधा जब इन्होंने हमें फ़ोन किया, जब हम उतने में तोड़ा और उसके बाद चले गए यहाँ से। उसके बाद माताजी ने उनको बोला, ये मंदिर का स्टेयर केस है, इसको मत छेड़ो आप, ठीक है, जैसा भी होगा जो कोर्ट ऑर्डर करेगा वो विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी नोटिस के आए। कोई नोटिस नहीं था उनके पास, कोई ऑर्डर नहीं था किसी भी चीज़ का, कोई भी किसी। और छुट्टी वाले दिन यहाँ पे आके उन्होंने ये तोड़ फोड़ की है सारी की सारी। जब ये एकदम तोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया तो मैं बाहर निकली, तो मैंने रिक्वेस्ट भी की अनूप सिंह जी से। उन्होंने कहा कि जी ये तो अब इसका तो हम करेंगे ही करेंगे, और कहते हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मंदिर के लिए लगी हुई है पौड़ियाँ, तो काहे को तोड़ रहे हो आप? तो उन्होंने यही जवाब मुझे दिया। लेकिन मैं सोचती थी कि शायद बुजुर्ग को देखते हुए कुछ तो मेरे को हौसला देंगे, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए और मैं भी एप्लीकेशन देने सदर में चली गई। वहाँ पे मैंने वहाँ पे FIR लॉन्च के लिए। वहीं स्थानीय विधायक अनिरुद्ध सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि प्रभावित परिवार ने पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और बीते लंबे समय से पंचायत की ओर से रास्ता बनाने के लिए अवैध कब्जा हटाने की अपील की जाती रही, लेकिन इन्होंने रास्ता देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई अमल में लाई। उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि कानून अपना काम अपने हिसाब से करेगा। मसला सड़क का है, जो कि सरकारी रास्ता खसरा नंबर 301 में पड़ता है, और मेरी जानकारी के अनुसार जो है पंचायत ने उसका काम जो है शुरू किया, और इसकी एप्लीकेशन जो है SP शिमला को दी गई थी, और साथ में पुलिस फोर्स और रेवेन्यू के लोग भी मौके पे मौजूद थे। मैं भी उस दिन वहाँ से क्रॉस हुआ है, मुझे पता है, और मैं वहाँ रुका भी था। मुझे बताया गया कि सड़क जो है ये जटोली गांव की तरफ को जा रही है, और उसमें कुछ लोग जो है इशू बना के काम को रुकाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैंने खुद वेरीफाई वहाँ पे जाके किया कि 301 खसरा नंबर में जिसका कोई भी कोर्ट केस नहीं है, और वो रास्ता शरेआम है, उस पर काम हो रहा था। वहीं डुमनी पंचायत के प्रधान मनोहर सिंह कश्यप भी विधायक अनिरुद्ध सिंह के बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को बेवजह जातिवाद का रंग दिया जा रहा है, जबकि पंचायत ने जो सीढ़ियां हटाई हैं वहां पर पंचायत का रास्ता है। उन्होंने बाकायदा उसके कागजात भी पेश किए। प्रधान ने बताया कि सीढ़ी तोड़ने की कार्रवाई पंचायत में लिए गए फैसले के बाद की गई है और इसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं है। उमेद राम कश्यप ने जो अवैध ढंग से जो एक सीढ़ी बनाई हुई है, उसके नीचे से लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। हम ग्रामीण परिवेश के आदमी हैं। ग्रामीण स्तर में जिस प्रकार कोई डेड बॉडी होती है उसको ले जाने में वहाँ परेशानी होती है। साथ में हमारे ग्रामीण स्तर की महिलाएं, वो जो भी घास है वो सिर पे उठाती है, तो उनको वहाँ से चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। इस विषय में हमने पहले उनसे भी कहा था कि इस जो आपने ये पौड़ी बनाई हुई है इसको साइड में करो, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। परसों हमने पंचायत वालों ने इस कार्य को काम अंजाम दिया, और इसमें विधायक जी का कोई भी नहीं है जो झूठा आरोप लगा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू, ठियोग और चौपाल के जनप्रतिनिधियों ने ठियोग हाटकोटी सड़क के मुद्दे पर अपनी मुहिम तेज कर दी है। गत दिनों शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान इस मामले को उठाकर इन जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गरमा दिया था और सरकार को सड़क निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 दिन का समय दिया था। और सोमवार को इन्होंने ठियोग के तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें सड़क की दशा सुधारने की अपील की गई है। ऊपरी शिमला के जनप्रतिनिधियों ने ठियोग हाटकोटी सड़क की खस्ता हालत के सुधार के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठाने और सड़क निर्माण कार्य में कंपनी व सरकार की मदद के लिए जनसंपर्क संघर्ष मंच का गठन किया है। इस गैर राजनीतिक मंच ने सोमवार को ठियोग में एक बैठक की और सड़क निर्माण को लेकर भावी रणनीति तय की। इस दौरान मंच ने ठियोग के तहसीलदार JR भारद्वाज के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें सड़क की दशा सुधारने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई और मंच की ओर से हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया गया। जिला परिषद सदस्य नीलम सरेक ने ठियोग हाटकोटी सड़क सुधार के लिए जन संघर्ष मंच की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
मेमोरेंडम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि जो इस सड़क की पिछले 8 वर्षों से जो दुर्दशा बनी है उसको सुधारने हेतु हमने आज सब जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो सड़क की हालत है, हम पिछले कई दिनों से अभी हमने 28 अक्टूबर को जितने जनप्रतिनिधि थे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में की थी। तो उसी के बाद हमने कहा था कि 15 दिन तक अगर सड़क पर कोई काम नहीं होता है तो 15 दिन के बाद हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर SDM ठियो को एक मेमोरेंडम देंगे। उनके द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को देंगे, वो आज हमने दिया है। इस सड़क की जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन जो हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए एक नई गाइडलाइन बनने की बात सामने आई है। हम उसका भी स्वागत करते हैं और हमने आज की जो भी इस कंपनी को ज़रूरत होगी कि जहाँ कहीं भी लगेगा कि लोगों की वजह से कहीं ये काम हो रहा है, उसका भी हम ट्राई करेंगे कि उसको भी दूर करें। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव औंद में नूरपुर के विधायक अजय महाजन द्वारा सोमवार को 18,08,000 की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास किया गया। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के बनने से जहां ग्रामीणों को लाभ होगा, वहीं ये स्वास्थ्य उपकेंद्र 1 साल के भीतर बनाकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। ये जानकारी नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने नूरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। नूरपुर के औंद में स्वास्थ्य उपकेंद्र का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक अजय महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में विकास की बयार बहा दी है और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अनेकों विकास कार्य करवाए हैं और आने वाले समय में कई ऐसे विकास कार्य हैं जो होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 साल में नूरपुर हॉस्पिटल में करोड़ों के हिसाब से पैसा लगाया गया है। हॉस्पिटल को 100 बेड का कर दिया गया है और पहले इस हॉस्पिटल में 7 स्टाफ नर्सें हुआ करती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर 19 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कई लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कारण विधानसभा का विकास कार्य रुका पड़ा है। ये सरासर गलत है। पिछले 2 वर्षों में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने करोड़ों रुपया नूरपुर की जनता को दिया है। मेरे ख्याल में ये पिछले 2 साल का एक नूरपुर के इतिहास में एक नया पन्ना लिखा गया है। इतना ज़्यादा विकास हुआ है हर क्षेत्र में। 21 ट्यूबवेल सैंक्शन कर दिए हैं जो तकरीबन 16 करोड़ के हैं। एक और स्कीम जो 12 करोड़ की वाटर अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल ओल्ड स्कीम्स की हो रही है और नूरपुर में 17 करोड़ का सीवरेज का शुरुआत हो गई है, सीवरेज के प्लांट की, उसका काम चल रहे हैं। इसी तरह करोड़ों रुपए की स्कीमें अलग अलग जगह वाटर स्कीमें आई हैं। नूरपुर चुनाव क्षेत्र में पिछले 5 साल में लारो और नारो के सिवा कुछ नहीं हुआ था। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से कैमरामैन सचिन के साथ अजय गुलेरी की रिपोर्ट। शिमला से अंबाला जा रही हरियाणा रोडवेज की बस ने सोलन बाईपास पर स्थित सब्जी मंडी के समीप सड़क पर खड़ी पिकअप जीप को टक्कर मार दी, जिससे वो करीब 80 फीट नीचे जा गिरी। हादसे के समय जीप में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बस का चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को वहां मौजूद लोगों की मदद से निकाला गया और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर सब्जी मंडी के समीप पिकअप जीप HP 51B 5688 सड़क किनारे खड़ी थी, जिसमें 3 लोग बैठे थे। पीछे से तेज रफ्तार से आई हरियाणा रोडवेज की बस HR 37D 8066 ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही जीप पुल से नीचे जा गिरी और उसमें सवार श्यामलाल, अतर सिंह और रोशनलाल तीनों लोग बुरी तरह से उसके अंदर दब गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ चीनू शर्मा की रिपोर्ट। जिला सोलन में यूको बैंक द्वारा सोमवार को 1 दिवसीय हिंदी राजभाषा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से करीब 21 बैंक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रतिनिधियों को हिंदी भाषा में कार्य करने के बारे में जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हिंदी भाषा में सुविधा प्रदान की जा सके। साथ ही बैंक द्वारा प्रायोजित योजनाएं भी हर व्यक्ति तक पहुँचाई जा सके। जिला सोलन में यूको बैंक द्वारा 1 दिवसीय हिंदी राजभाषा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से करीब 21 बैंक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रतिनिधियों को हिंदी भाषा में कार्य करने के बारे में जानकारी दी गई, ताकि अधिक से अधिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हिंदी भाषा में सुविधा प्रदान हो और बैंक द्वारा प्रायोजित योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। इस कार्यशाला में हिंदी में टंकण क्रिया, व्याकरण एवं हिंदी में व्यावहारिक बोलचाल सिखाया गया।
इसके अलावा नेट बैंकिंग में हिंदी भाषा के प्रयोग और प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में विस्तार से प्रशिक्षुओं को बताया गया। यूको बैंक हिंदी राजभाषा अधिकारी चंद्रकांता ने जानकारी देते हुए बताया कि राजभाषा में काम करने से अधिक लोगों को बैंक की कार्यप्रणाली को समझने में आसानी हो पाएगी। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी हम हिंदी बोलने में शर्म करते हैं। उसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत असुविधा होती है। हमने ये सोचकर ये कार्यक्रम रखा है ताकि हमारे जितने भी नए बच्चे हैं वो सभी कामकाज को बैंकों में हिंदी में कर सकें, जिससे हिंदी को बढ़ावा मिले। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन के सनातन धर्म मंदिर के सभागार में अग्रवाल सभा सोलन द्वारा अग्रकुल महाराजा अग्रसेन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में अव्वल रहे बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जिला सोलन के सनातन धर्म मंदिर के सभागार में अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित अग्रकुल महाराज अग्रसेन मिलन समारोह में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की एकल नृत्य प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, जिसे उपस्थित जनसमूह ने तालियों से सराहा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि समारोह में देश के प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर अग्रवाल सभा के सभी सदस्यों ने सोलन को साफ सुथरा रखने की शपथ ली है ताकि वातावरण स्वच्छ हो सके। जहां अग्रसेन महाराज से प्रेरणा लेते हुए देश और समाज को आगे बढ़ाने की बात यहां कही गई है, उसमें बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो हमें लगी, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबने ये संकल्प लिया कि हम सुंदर स्वच्छ सोलन बनाएंगे। ये प्रेरणा जगी श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा लेकर के पूरा देश जहाँ आगे बढ़ रहा है, वहाँ सोलन का अग्र समाज इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता में अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। रविवार को कंडाघाट में एमेच्योर रग्बी फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्रीय रिव्यू समिति के चेयरमैन ठाकुर रामलाल ने की। रामलाल ठाकुर के कंडाघाट में पहुंचने पर अन्य राज्यों से आए सभी रग्बी फुटबॉल के प्रधानों व सचिवों ने उनका भव्य स्वागत किया। कंडाघाट में एमेच्योर रग्बी फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक 20 सूत्रीय रिव्यू समिति के चेयरमैन रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। रामलाल ठाकुर ने बताया कि इस बैठक में पिछले साल की गतिविधियों पर चर्चा की गई तथा आगामी साल के लिए इस खेल को आगे ले जाने तथा इस खेल का कहां-कहां आयोजन किया जाना है, इसके बारे में चर्चा की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 2014 की चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी, वहीं 2015 की चैंपियनशिप राजस्थान में और 2016 की चैंपियनशिप मणिपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें जो हमने पिछले वर्षों में जो किया है उसके साथ अगले वर्षों के लिए या खासकर जो हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हमारी क्या क्या गतिविधियां रहेगी, कैसे और कहां पे हमने चैंपियनशिप करवानी है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। पहले हमारी जो ऑल इंडिया चैंपियनशिप थी वो हमने बिलासपुर में करवाई थी और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस जो था वो प्लेयर्स का और ऑर्गेनाइजर्स का मिला था। और अभी हम अगले साल के लिए कहाँ पे मिलेंगे इसके बारे में और साथ में हमने जो है वो इस स्पोर्ट्स को आगे कैसे लेके जाना है इसके बारे में हमने चर्चा करनी है इस बैठक के अंदर। इस बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीआर, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के रग्बी फुटबॉल टीम के प्रधानों व सचिवों ने भाग लिया। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत बीशा में मेला कमेटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मेला रविवार को संपन्न हो गया। मेले के समापन अवसर पर बीशा पंचायत के प्रधान धर्मदत्त विशेष रूप से उपस्थित रहे। 2 दिवसीय इस मेले में कबड्डी, वॉलीबॉल व तीर कमान जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। कंडाघाट के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत बीशा में रविवार को 2 दिवसीय मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में मेला कमेटी के सदस्यों द्वारा कबड्डी, वॉलीबॉल व तीर कमान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मेले के दौरान विभिन्न देशों नाइजीरिया, युगांडा, यूक्रेन, तंजानिया, जाम्बिया व भूटान के छात्र छात्राओं ने मेले में आकर अपने देश की संस्कृति से उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। मेले के समापन अवसर पर बीशा पंचायत के प्रधान धर्मदत्त विशेष रूप से उपस्थित हुए। मेले में आयोजित कबड्डी का फाइनल मैच BC सोलन B ने अपने नाम किया, वहीं वॉलीबॉल का फाइनल मैच आर्मी क्लब सोलन ने अपने नाम किया। बीशा पंचायत के प्रधान धर्मदत्त ने कहा कि बीशा मेला सैकड़ों वर्षों से मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले बहुत सालों से मनाया जा रहा है और ये सैकड़ों सालों से मनाया जाता है। ये देव महात्मा जो यहाँ पर स्थानीय इष्ट देवता है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसको मनाने का यही एक तरीका है कि मतलब जो यहाँ पर इष्ट देवता है इसके साथ तो जो भी मतलब लोगों की परंपरा जुड़ी है उसलिए ये मेले को मनाया जाता है और इस वर्ष तो बहुत ही अच्छा मेला रहा यहाँ पर। यहाँ APG के छात्रों द्वारा बाहर से आए हुए देशों के कई देशों के छात्र जो थे वो यहाँ पर उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हमीरपुर के टाउन हॉल में सोमवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा परमात्म शक्ति से महापरिवर्तन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जालंधर से आए जोन इंचार्ज BK राज ने की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान टाउन हॉल परिसर में बनाए गए 40 फीट ऊंचे शिवलिंग का भी लोकार्पण किया गया। हमीरपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा परमात्मा शक्ति से महापरिवर्तन के लिए स्वर्णिम युग की स्थापना हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जालंधर से आए हुए जोन इंचार्ज BK राज ने की। सब जोन इंचार्ज BK राज ने बताया कि समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को आगे आना होगा। ब्रह्म कुमारी समाज के द्वारा समाज में शांति की स्थापना व मिलकर एकजुटता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी साल 27 फरवरी से 30 मार्च तक महासम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से विश्व में ईश्वरीय व वैदिक भावना को जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। कठिनाइयाँ आज परिवार और समाज के अंदर बढ़ रही हैं, उसके लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा जो आज भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सच्ची भावना से, निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो संगठित होकर के मिलकर के हम काम करें। इसलिए हमने हमारे जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है, वहाँ पर अब 27 फरवरी से 30 मार्च तक एक ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए लगभग 5000 भाई बहनों को हम वहाँ पर बुला रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हम मिलकर के समाज के अंदर पुनः नैतिक और चरित्र मूल्यों का पुनरुत्थान करें। इस अवसर पर टाउन हॉल परिसर में बनाए गए 40 फीट ऊंचे शिवलिंग का भी लोकार्पण किया गया। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जिला चंबा के डलहौजी में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रविवार को एक मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सोसाइटी द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मेले में बेबी शो के अलावा अन्य मनोरंजक खेलों का आयोजन भी किया गया। डलहौजी में आयोजित रेड क्रॉस मेले में बेबी शो के अलावा मनोरंजन खेलों का आयोजन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा।
मेले से जो आय होगी उसे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करवाया जाएगा। सोसाइटी से पैसा उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खर्च होगा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष एवं उपायुक्त एम सुधा देवी सहित एसडीएम डलहौजी मलोक सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूलों के प्रधानाचार्य, शहर के गणमान्य लोग, स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर बाजार में एक नए बैनर को विकसित किया जाएगा और डलहौजी में आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए ग्रीष्मोत्सव को फिर से शुरू किया जाएगा। रेड क्रॉस मूवमेंट जो है ये एक बहुत ही लोगों से जुड़ी हुई संस्था है और जैसा उपायुक्त महोदया ने बताया, बहुत सारे लोगों की मदद जो रेड क्रॉस सोसाइटी ट्रीटमेंट के लिए, अन्य चीजों के लिए करती है, उससे गरीब से गरीब तबका जो है उसको लाभ पहुंचता है। और मैं चाहूंगी, मैंने पहले भी निवेदन किया कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और मेंबर नहीं बने हैं, सभी जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर बने। ये एक समाज में अच्छा काम है। अच्छे काम के लिए पूरा समाज जब आगे आएगा तभी कोई सुधार हो पाता है। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रशिक्षित कला अध्यापक संघ हमीरपुर ने शिक्षकों को 4/9/14 व विशेष वेतन वृद्धियां नहीं मिल पाने के चलते आगामी रणनीति बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का आयोजन हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बलदेव कलसी ने की। इस अवसर पर शिक्षकों की अन्य लंबित पड़ी मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। हमीरपुर में आयोजित राजकीय प्रशिक्षित कला अध्यापक संघ की जिला स्तरीय बैठक के दौरान सरकार से मांग की गई कि 15 साल पूरा कर चुके शिक्षकों को 2 विशेष वेतन वृद्धियां दी जाए। साथ ही 4/9/14 में बचे हुए मामलों को भी जल्द सुलझाने के लिए सरकार से मांग की गई। इस मौके पर राजकीय प्रशिक्षित कला अध्यापक संघ हमीरपुर के जिला अध्यक्ष बलदेव कलसी ने मांग की कि सरकार द्वारा जारी की गई प्रमोशन लिस्ट में कई लोग बच गए हैं जिनकी सभी औपचारिकताएं पूरी थी। ऐसे शिक्षकों को भी जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए। और एक हमारी विशेष मांग रखी गई हमारे सभी साथियों ने कि 15 साल जैसे हमारी सेवा हो जाती है, उसके पश्चात जो है सरकार हमें 2 विशेष वेतन वृद्धियाँ प्रदान करे। और कुछ लोगों की प्रमोशन में जैसे केस, हमारे कुछ लोग जो थे उनसे जो जूनियर थे वो प्रमोट हो गए और सीनियर वो लोग रह गए हैं। कुछ 2-4 केस ऐसे हमारे सामने ध्यान में आए हैं, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की और विभाग से हम मांग करेंगे कि उन लोगों को भी जो है पदोन्नति दी जाए। लेफ्ट आउट की जो लिस्ट है, जिस और भी हो सकता है, अभी तो 2-4 ही आए हैं, हो सकता है और भी हमारे ऐसे साथी हों या और डिस्ट्रिक्ट में भी हों, तो जितने भी साथी छूट गए हैं प्रमोशन से उनकी भी एक लेफ्ट आउट की लिस्ट जो है वो निकाल दी जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा स्थित चुराहा पंचायत के अधवारी गांव के लोगों का एक दल उनके क्षेत्र की पानी की समस्या को लेकर सोमवार को उपायुक्त चंबा से मिला। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय पहले उनके क्षेत्र के लिए पानी की पाइपलाइन स्वीकृत की गई थी, लेकिन अब तक पाइपलाइन पूरी तरह नहीं बिछ पाई है, जिस कारण ग्रामीणों को पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए मीलों चलकर जाना पड़ता है। सोमवार को चंबा की चुराहा पंचायत में अधवारी गांव के लोगों का एक दल चंबा के उपायुक्त से मिला। लोगों का कहना है कि उनके गांव अधवारी के लिए आईपीएच विभाग द्वारा पाइपलाइन सैंक्शन की गई थी, लेकिन ये पाइपलाइन सिर्फ खड्डी से धराचू के लिए ही लगाई गई है और उनके गांव तक पानी नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों द्वारा पानी की समस्या को लेकर चंबा के उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस समस्या को लेकर आईपीएच विभाग के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनके क्षेत्र की पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनकी मांग है कि जिला प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे और उनके गांव की पानी की समस्या को सुलझाया जाए। जो आए हैं ये चांजू पंचायत के सर, जो कि इनकी अधवारी है ऊपर सर, इनका कोई 10-12 टोली है। सारे इनके जो माल बच्चों कोई भी लकड़ी लेने के लिए जाते हैं सर, वो पानी सेक्शन खरीडी से दुरंजी तक सर, जो कि जो पानी का जो सोर्स है वो भी ठीक नहीं बना हुआ, पाइपें अधूरी पड़ी हुई है सर। तो पानी भी आधे तक बना सर, काम ख़त्म कर दिया, पैसा पूसा पेमेंट सारा सब निकल गई है, ठीक है सर। तो
इनको बहुत दिक्कत है पानी की सर। 5, 6, 7 किलोमीटर नीचे तक जाना पड़ता है सर, पानी की बहुत प्रॉब्लम। जब इन्होंने शिकायत की सर तो शिकायत में वो धमकी देते हैं सर। अब आज का बाद अब अखबार में दिया, बहुत बार इन्होंने अखबार में दिया सर, कोई भी गौर नहीं सर। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। राजा घेपन इन दिनों अपनी लाहौल घाटी की परिक्रमा में निकले हुए हैं। ये परिक्रमा 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। राजा घेपन 3 साल में एक बार लाहौल घाटी की परिक्रमा करते हैं। अपनी परिक्रमा के दौरान राजा घेपन सोमवार को लाहौल घाटी की लोट गांव में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लाहौल घाटी की अपनी परिक्रमा के दौरान राजा घेपन 12 दिन बाद लाहौल घाटी के लोट गांव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। स्थानीय ग्रामीण दोरजे ने बताया कि राजा घेपन उनके गांव पहुंचे हैं और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और सुख शांति का आशीर्वाद लिया। 12-15 दिन हो गए हैं और इनकी यात्रा के समय हमने स्वागत किया इनका पिछले कल। तो हमारे यहाँ पर छोटा सा आयोजन किया गया, जिसमें मतलब जो भी हमारे राजा घेपन जी के साथ जो भी कारकुन आते हैं उनका भी स्वागत किया जाता है और पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर के एक ही जगह इनका स्वागत भव्य तरीके से करते हैं। लोट महिला मंडल की प्रधान निर्मला ने बताया कि राजा घेपन के आने से सभी महिलाएं खुश हैं और उनका पारंपरिक तरीके से हर गांव में स्वागत किया जा रहा है। लोट की महिलाएं जी अपने हम देख तो पहले आप पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के इनका स्वागत करते हैं। करछुल बकायदा मक्खन घी वगैरह शूर निकालते थाली में। ये शूर ही हमारा सबसे खास माना जाता है हमारे देवी देवताओं के लिए, या कोई भी त्योहार में सबसे पहले शूर और मक्खन से इनका देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।